To grace the occasion, we are joined by Honorable Union Minister of Civil Aviation and Steel, Sri Jyotiraditya Scindia ji, Honorable Union Minister of State for Civil Aviation and Road Transport, General V.K. Singh ji, Secretary Civil Aviation, Sri Rajiv Bansal ji, friends from the travel trade, and our other esteemed guests from the Airport Authority of India, CISF, and senior management of Air India Express and AirAsia India. It is a light that illuminates the path ahead of us and helps us see the way forward. May I kindly request Honorable Sri Jyotiraditya Scindia ji and Honorable Union Minister of State for Civil Aviation and Road Transport General V.K. Singh ji, Sri Rajiv Bansal ji, Secretary Civil Aviation to inaugurate the event by lighting the lamp. Sir, I after you, sir. also request Tara Naidu, Chief of Commercial, and A.B. George, Chief of Airport Services, to light the lamp Choose. here by me. Thank you, dear esteemed guest. I now request Mr. Alok Singh, Managing Director, Air India Express and AirAsia India, to deliver the welcome speech. मास्क निकाल के बोलिए. Thank you. Honorable Minister for Civil Aviation, Steel, Government of India, Shri Scindia ji. Honorable Minister of State for Civil Aviation, Road Transport, General V.K. Singh ji. Uh, Dignitaries, guests, colleagues from Airport Authority of India, CISF, Customs, BCAS, and my colleagues from Air India Express, AirAsia India, and Air India. It gives me great pleasure, sir, to welcome you all to this function to mark the inauguration of our services from Indore to Sharjah. With this, Indore becomes the 30th station in India on the combined network of Air India Express and AirAsia India. Uh, we are starting with 3 services a week to Sharjah. We already have 1 service a week to Dubai. So with this, we become 4 services a week from Indore to Sharjah and to Dubai. Uh, the LCC, sir, as you know, is on a growth path on the back of a massive order that has been placed by Air India, our parent company. The focus of the LCC, which is the joint entity Air India Express and AirAsia India, is going to be on tier 2, tier 3 cities. And we are going to offer non-stop direct connectivity to many Indian stations and also to overseas Indian stations. Uh, so you will be happy to know that just a few days ago, we have cut over to a common reservations and check-in platform that will enable us to offer a seamless service to guests, booking services between AirAsia and Air India Express. And going forward, we will be able to offer seamless connectivity between the networks of the 2 LCCs and also Air India. So we will be able to enhance the connectivity greatly by way of code shares and by way of connecting services. Uh, Incidentally, today is the first day that we have actually started the departure control system out of Indore on the new platform. Uh, and we are really pleased, sir, that this service is now going to add to the services that we offer to Dubai and to Sharjah. Sharjah, Dubai together are our biggest overseas hubs. We together offer about 22 services a day between the 2 stations. And in India, we are connecting 18 destinations, Indore being the 18th destination. So thank you so much for this opportunity. I would like to thank all our partners, all our stakeholders for supporting us in starting our services. And we look forward to serving our guests from Indore and from Sharjah. Thank you. Thank you so much, Alok.
To mark this event and Air India Express's presence in Indore, I request Mr. Alok Singh, the Managing Director, Air India Express and AirAsia India, to hand over the boarding pass to the Honorable Minister of Civil Aviation, Sri Jyotiraditya Sindhya. Welcome, sir, on board our Let's put our first hands flight. together. Thank you. Thank you so much, dear guests. Thank you, Alok. Thank you so much for your kind gesture. On that note, I now request Chief of Commercial, Tara Naidu, Air India Express, and Chief of Airport Services, Mr. Abby George, to hand over the boarding pass to our first guests on board with their family. I request Mr. Nilesh Kabra, Ritu Kabra, and Kabir Kabra to join here and receive the first boarding pass to this event. I request the guests put your hands together and welcome the first guest on board. 10:30 is the departure from there, Indore to Sharjah. Thank you very much, dear guests. Thank you so much for your kind gesture. Thank you, Tara. Thank you, Abby. May I now kindly request Honorable Union Minister of State for Civil Aviation Road Transport, General V.K. Singh, to address the gathering. हमारे नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके देख रेख में इस क्षेत्र के अंदर काफी प्रगति हुई है। यहाँ पर मौजूद एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया के एमडी श्री आलोक सिंह जी, कैप्टन मनीष उपल जी, हेड ऑफ ऑपरेशंस एयर एशिया, एंड सभी अधिकारीगण जो कि मौजूद हैं इस मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के और एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के और सब्सिडरीज के। सर्वप्रथम तो मैं इंदौर के अंदर जो त्रासदी हुई है उसके लिए शोक प्रकट करना चाहूंगा। उस शोक के अंदर एक आज जो ये फ्लाइट शुरू हो रही है, जो 3 बार इंदौर से चलेगी शारजा के लिए, एक बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए मैं एयर इंडिया को और उसकी सभी सब्सिडीज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इंदौर की कनेक्टिविटी जितनी बढ़ी है पिछले 1 वर्ष में, शायद इससे पहले कभी नहीं बढ़ी और इसीलिए शायद उसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक का भी जो एक खिताब मिला है विगत कुछ दिनों में, वो भी अपने आप के अंदर इस चीज का साक्षी है कि किस तरीके से इंदौर की प्रगति हुई है। इंदौर देश के बाकी स्थानों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अब बाहर के देशों में जो उसकी जिस तरह से संपर्क बढ़ता जा रहा है, वो इंदौर वासियों के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक बहुत बड़ी देन है। मेरी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, General V.K. Singh ji, for your kind words. May I now kindly request Sri Jyotiraditya Sindhya ji, Honorable Union Minister for Civil Aviation, to deliver the inaugural speech. मेरे साथ यहाँ उपस्थित मेरे सहभागी मंत्रालय में और राज्य मंत्री भूतल पर्यावरण मंत्रालय के भी आदरणीय जनरल वी.के. सिंह साहब, यहाँ उपस्थित एयर एशिया के हमारे आलोक सिंह जी और एयर इंडिया एक्सप्रेस के आलोक सिंह जी और एयर एशिया के कैप्टन मनीष उपल जी, इंदौर के एयरपोर्ट पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों, यात्रीगण और विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित समस्त हमारे अधिकारीगण, सर्वप्रथम एक बड़ी दुखद घटना कल इंदौर में घटी है, जहां पटेल नगर में बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में
हमारे श्रद्धालु दर्शन के लिए गए थे और वहां की बावड़ी की छत धंसने से करीब करीब 35 लोगों का देहांत हो गया है और 13-14 लोग अभी भी घायल हैं। बड़ी दुखद घटना हमारी इंदौर में हुई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे दिवंगत आत्माओं को अपने दरबार में स्थान दें और जो लोग घायल हैं वे जल्द स्वस्थ हों, ये मेरी मन की कामना है। आज इंदौर के लिए एक और महत्वपूर्ण कड़ी एक ऐतिहासिक शहर के लिए जुड़ रही है। हमारा इंदौर एक महत्व रखता है मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में। होलकर राजवंश की राजधानी जो इंदौर रही है, देवी अहिल्याबाई के द्वारा इंदौर में जो प्रगति और विकास और मंदिरों का उत्थान केवल इंदौर में नहीं लेकिन पूर्ण देश में किया गया, वो अस्मरणीय है। और उसी के साथ होलकर राजवंश के तुकोजीराव होलकर जी ने द्वितीय ने जो औद्योगिक विकास का एक ढांचा इंदौर के लिए उस अवधि में बनाया था, उसी ढांचे के आधार पर आज भी इंदौर विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर और अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इंदौर ने कई खातियां अपनाई हैं, जीती हैं। 6 बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर उभरा है। वाटर प्लस सिटी के रूप में इंदौर उभरा है। कई अंतर्राष्ट्रीय अवसर, उदाहरण के तौर पर G20 का कार्यक्रम और प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में जनवरी के माह में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इंदौर में आयोजित की गई। तो एक विश्व स्तर की आज पहचान हो चुकी है और इसलिए ये समय की मांग है और समय की पुकार है कि इंदौर को भी विश्व के साथ हमें जोड़ना होगा। करीब 1 साल पूर्व एयर इंडिया के द्वारा ही इंदौर को दुबई के साथ जोड़ा गया था। मैं एयर इंडिया और एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस तीनों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे अभी आलोक सिंह जी ने हमको समझाया कि देश और विदेश को जोड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ये एयर इंडिया की सभी कंपनियां पैदा कर रही हैं। और जनवरी के माह में जब प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था इंदौर में, उस समय ही मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया के साथ चर्चा करके निवेदन किया था कि एक और गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जुड़ाना होगा। और उसी प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के आह्वान पर ये हमने घोषणा की थी कि जल्द ही इंदौर को हम लोग, जो दुबई के साथ जुड़ी हुई है, आने वाले दिनों में हम लोग शारजा से भी हम लोग जोड़ेंगे। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए और इसलिए ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, सही तरीके से बधाई हम लोगों को एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया को देना चाहिए। आगे आकर उन्होंने हमारी कल्पना, हमारी मनोकामना, हमारी आशा, हमारी अभिलाषा को पूर्ण किया है। और आज से हमारा इंदौर शारजा के साथ हफ्ते में 3 दिवस, सोमवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिवस जुड़ जाएगा। इससे यूएई की कनेक्टिविटी पूर्ण हो जाएगी इंदौर से। एक तरफ दुबई हफ्ते में 1 दिन, दूसरे तरफ शारजा हफ्ते में 3 दिन। और वैसे भी यूएई
के साथ एक निकटता का संबंध इंदौर का है। बहुत सारा निवेश भी हमारे प्रवासी भारतीयों से यूएई से इंदौर में आता है। हमारे परिजन भी एक दूसरों से मिल पाएंगे। अब दिल्ली होकर इंदौर या इंदौर से दिल्ली होकर शारजा और दुबई जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के हमारे दोनों महानुभावों को कि ये बहुत महत्वपूर्ण अंग उन्होंने उठाया है। हमारा इंदौर हवाई अड्डा एक बहुत देश के हवाई अड्डों में से एक बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। मुझे याद है कि इंदौर में 2014 में आवागमन की सुविधाएं बड़ी संकीर्ण थी और एक प्यास था इंदौर में देश के कोने कोने के साथ जुड़ने का। इंदौर जैसी महत्वपूर्ण शहर में केवल 6 गंतव्य, 6 शहर देश के इंदौर के साथ जुड़े थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 9 वर्षों में आज वही इंदौर 6 के बदले में 24 शहरों के साथ जुड़ चुका है। मतलब 400% वृद्धि आज हो चुकी है और उसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय शहर हैं, शारजा और दुबई। तो ये विकसित प्रगति और विकास एक जाल की तरह इंदौर को पूरे देश के साथ और अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ जोड़ने का कार्य पिछले कई वर्षों में हमारे द्वारा किया गया है। हर हफ्ते करीब करीब 320 विमान इंदौर से उड़ते थे। आज उसी इंदौर से करीब 500 विमान हर हफ्ते उड़ते हैं। तो करीब 52% वहां वृद्धि हुई है और यही एक विकास और प्रगति भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए ला पाई है। मैं मानता हूं कि इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, उस मध्य प्रदेश की नागर विमानन प्रगति और विकास भी अत्यंत जरूरी है। और इस विकास के मैं मानता हूं 4 स्तंभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला स्तंभ है कि शहरों से बढ़ती हुई कनेक्टिविटी। और 2014 में अगर हम पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश केवल 8 शहरों के साथ पूरे देश में जुड़ा हुआ था और आज 9 साल बाद वही मध्य प्रदेश आज 26 शहरों के साथ पूरे देश में जुड़ा हुआ है। तो 300% वृद्धि मध्य प्रदेश के आवागमन में हुई है। और अगर विमानों की श्रृंखला से हम देखें तो जहां 500 विमान प्रति हफ्ता इंदौर आते थे, आज करीब करीब 840 विमान आज मध्य प्रदेश इंदौर नहीं मध्य प्रदेश आते थे, आज 840 विमान मध्य प्रदेश आते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है कि आम आदमी को हवाई जहाज की सुविधा हम लोग दे पाएं। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प और उनका एक दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर उड़े देश की आम नागरिक की योजना उन्होंने बनाई थी। उसी के तहत करीब करीब 60 रूट्स मध्य प्रदेश को दिए गए हैं, जिसमें से करीब करीब 33 रूट्स वर्तमान में 60% प्रचलित हैं और आने वाले दिनों में अतिरिक्त 12 रूट्स हम लोग प्रचलित करने जा रहे हैं। चौथा स्तंभ नागर विमानन का है आवश्यक अधोसंरचना। अभी कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ रीवा के एयरपोर्ट की आधारशिला हमने रखी। वहां करीब करीब 50 करोड़ का निवेश किया जाएगा छोटे विमान के लिए और आने वाले दिनों में फेज 2 में हम लोग ATR विमान की भी कोशिश करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ग्वालियर में करीब करीब 500 करोड़ रुपए का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनने जा रहा है और जबलपुर में भी करीब 450 करोड़ का एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनने जा रहा है। तो जिस मध्य प्रदेश में केवल 2 बड़े हवाई अड्डे भोपाल और इंदौर होते थे इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग्स के साथ, वहीं आज इंदौर और भोपाल के साथ ग्वालियर और जबलपुर भी तैयार हो जाएगा और आने वाले दिनों में रीवा की भी प्रगति होगी। छोटे छोटे शहरों को भी
फ्लाइट्स छोटे प्लेन्स के साथ 19 सीटर्स के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश है। उदाहरण के तौर पर दतिया हो, दूसरे छोटे शहरों हो। तो ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं मैं कि नागर विमानन मंत्रालय जहां एक तरफ इंदौर को और मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर आवागमन की सुविधा और मध्य प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों के साथ भी आवागमन की सुविधा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के अंदर छोटे छोटे शहरों को भी नागर विमानन क्षेत्र के साथ जोड़ने की हमारी कोशिश आगे चल रही होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी यही कोशिश है कि नागर विमानन क्षेत्र में जो आज भारत 7वें नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक यात्रियों को मिलाकर, उसी भारत को आने वाले दिनों में आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की विश्वास के आधार पर हमारे एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ पूरे विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल हब एविएशन के रूप में हम लोग परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का सफर सुगम और सफल रहे, यही कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for your kind words, sir. I now request once again Sri Jyotiraditya Scindia ji to flag off the inaugural flight of Air India Express. I'm giving you one more. Why don't you hold that? We both will hold this. Why don't you both? Where is Uppal ji? Manish, come. Let's give a big round of applause to mark this wonderful occasion, the launch event of Air India Express at Indore. Thank you so much, dear guests, for your kind gesture. Thank you once again. I now request Tara Naidu, Chief of Commercial Air India Express, to deliver the vote of thanks. The Honorable Union Minister of Civil Aviation and Sri Jyotiraditya Scindia ji, Honorable Union Minister of State for Civil Aviation and Road Transport, V.K. Singh, Sri Alok Singh, Managing Director of Air India Express and AirAsia India, dignitaries from the Ministry of Civil Aviation, and the three airlines, Air India Express, AirAsia India, as well as our colleagues from the travel trade. We would like to thank all of you for gracing this occasion. Thank you to the Airport Authority of India and the officials representing it who have helped us in making this function a great success. We look forward to the cooperation and thank the residents of Indore for traveling on our first few flights, even though they were introduced at short notice to Sharjah. We look forward to the cooperation of the travel trade and the residents of this great city to continue to support and travel on Air India Express and make use of this direct connectivity 4 times a week to UAE. Thank you very much. Thank you so much, Tara. Thank you, everyone. Thank you, dear guests. Now we conclude the event. And to capture this auspicious and successful event, I request all the dignitaries and the senior management from Air India Express and AirAsia to join for a group photography.